we have our today's lecture general which we call double entry. Okay, so we have done general for the concept of that we record every transaction twice. We record the transaction in the debited side also, and we record transaction on the credited side also. So like whatever we have and whatever we lost, we record both the items. Okay, then I proceed towards the next slide. In the slides, here we have a wrap-up activity. I will do it in the end of my lecture. First, come towards this journal, the main concept and the technical parts of this topic. We have this exam question number 13. You can find it by the name of Mr. Zia. ठीक है, so kindly जो भी मैं क्वेश्चंस नंबर आप आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, उन क्वेश्चंस को अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, so that you people will be well aware that what questions you have to attempt in your registers. This is on book page number 66 in your book. Okay, so the first question from the book, we have defined the term generalizing and posting. As I told you, to the generalizing we are using the word that general recording of transaction twice. Okay, and posting means to record that specific transaction at the right place, following the rule of debit and credit. ठीक है, so we have two terms, generalizing and posting. Generalizing means recording in the double like double entry system, in which we have to debit the account, in which we have to credit the account. Then we have part B. During the month of March of the current year, Mr. Zaya, a business consultant, complete the following transaction. Now, what you have to do, girls, kindly make 5 columns. Your first column should be date, then particulars, post reference, debit and credit, and you have to solve this question right now with me as you are attending your lecture. So kindly make sure that while you are attending the lecture, side by side, you're also solving this question. Okay. So we have first transaction. Number one, we have March 1st. Zaya started his business with the cash investment 25,000. It is very easiest journal entry. Whenever we start the business, we make the journal entry like cash, debit and capital credit. And then we write the transaction narration, you can say. Then we write the narration to record investment of Zaya, and then we put it in a bracket and then narration line. Clear? Here I have another March 2, bought rupees 6,000 supplies for his office. It means bought means he purchased the supplies for his office. Name of the asset is mentioned. That's why I write it down. I have office supplies, debit and cash credit. Clear? पेड रुपीज़ 5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है, रेंट पे किया है, रेंट की नेचर है आपके पास एक्सपेंस की, मार्च के मंथ का आपके पास एक्सपेंस है फॉर द ऑफिस. ठीक है, पेड के साथ आपके पास है ऑफिस रेंट एक्सपेंस. एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेज इट इज़ डेबिटेड. देन जब भी हम अपना कोई खर्चा करते हैं, आपके पास से कैश चला जाता है, एसेट डिक्रीजेज. Asset when decreases, it is credited. So you have write it down in the credited side. You can see over here. Okay. Then we have purchased office equipment for rupees 12,000. This amount was to be paid in 3 equal installments at the end of March, April and May. उन्होंने कहा है टोटल हमने जो एक परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट का, उसकी टोटल कॉस्ट है बेटे 12,000 रुपीज़, लेकिन हम उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं. इट मीन्स 12,000 डिवाइडेड बाय 3. हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4,000. हमें पर मंथ 4,000 पे करने हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, देन अप्रैल एंड फॉर द मे. तो अगर हम इनको 4,000 फॉर द मार्च, 4,000 फॉर अप्रैल, 4,000 फॉर मे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 12,000 ही बन जाएगा. ईजीएस्ट वे क्या है इसकी कैलकुलेशन की? हमने आपको सिंपली बताया कि आपने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, जिसको आपके 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स है. तो जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, आपने उससे अमाउंट को डिवाइड किया एंड देन यू विल गेट योर आंसर. हमारे पास आंसर है ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 एंड अमाउंट्स पेएबल 12,000. क्लियर?
ओके, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो काइंडली इसको जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, दिस अमाउंट टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ मार्च, ये हमारे पास ड्यूरिंग द करंट ईयर की है, और एंड ऑफ मार्च में अगर पेमेंट हो रही है हमारे पास तो वो 4000 होगी। ठीक है, ये इन्होंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को सिंपल यहाँ पे जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट, यस आई प्रोसीड। जी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹12,000, दिस अमाउंट इज टू पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आप लोग यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, वो सिंपल हम अपने पास फॉर द मंथ ऑफ मार्च की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से 4000 से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके सोल्यूशन में इन्होंने आपको 12 दिया हुआ है, बट यू हैव परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹12,000, दिस अमाउंट, येस वी हैव टू रिकॉर्ड बाय 4000। ठीक है, सो वी हैव टू रिकॉर्डिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ का आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, करंट मंथ का, तो यहाँ पे 4000 से कीजिएगा, 12,000 से रिकॉर्ड नहीं करिएगा। Receipt from consultant services. Consultant services over here is your income, and whenever we record the income, we are recording income in a credited side. Income is your revenue. ठीक है, so we are recording revenue on the credited side, and we are receiving cash in return. Then payment of salary to the assistant, salaries nature is also your expense, and we have an amount of salaries expense debit and then cash credit. Okay, expense when increases is debited, as I have discussed with you. Then we have paid the first installment on equipment. We are paying the installment. Okay, sorry. I have discussed that 4000. Now we will make this entry over here. Paid the first installment, account payable, debit, cash, credit 4000. Okay. I make it correct. We purchase office equipment rupees 12,000. आपकी फिफ्थ की एंट्री बनेगी 12,000 से। ठीक है, एंड देन हम जब इसकी पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं करी है, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, यहाँ पे आप 31st को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी एट द एंड ऑफ मार्च। ठीक है, तो यहाँ आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया 12,000 का, एंड देन इन दी एंड आपने सिर्फ मार्च के मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करी है, क्योंकि पेड इंस्टॉलमेंट्स है, जब भी पेड का वर्ड आ रहा है तो आपके पास इसका मतलब वो चीज़ जो आपके पास एक परचेज आपने करी हुई थी उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। आपके पास जर्नल एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल, डेबिट एंड कैश क्रेडिट। पेड टू सप्लायर्स की जर्नल एंट्री जो हमारे पास बनती है ये वो है। ठीक है बेटे, okay fine, we have this is the total transactions we have, we have more transactions. We have on 31st we have more transactions. Here we have receipt from the services rendered during the first 2 weeks and ended in March 31st, amount 9,300. Okay, we are providing the services. Again for the services provision we are providing the consultation fee. जब भी आप सर्विस कोई भी प्रोवाइड करेंगे इसका मतलब आपके पास इनकम जनरेट होगी। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारे पास, Zaya withdrew 8,000 cash for his personal use. As you people well aware that whenever we are withdrawing something, personal use के लिए आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने withdraw किया है बिजनेस से कैश अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, it means this is your drawing, and we usually write it down the name of the person at the start of drawing, और अगर कैपिटल लिखते हैं तो उसके साथ भी नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल लिखते हैं तो उसके साथ भी आप नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करते होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13, पास्ट पेपर्स का एयर अगर मैं आपके साथ फॉलो करूं, दिस इज योर 2002 रेगुलर। ठीक है, सो हमने जो इस क्वेश्चन को गो थ्रू किया, वेरी इजी। एक दफ़ा ट्रांजेक्शन नंबर मार्च 5 को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे आपने इस ट्रांजेक्शन को सिर्फ परचेज ऑफिस इक्विपमेंट को कंसिडर करना है कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा कितने का है, 12,000 का। हमने उसकी जर्नल एंट्री बनाई है सिंपल ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, क्योंकि अभी हमने अमाउंट पेड नहीं करी है और हम मार्च के एंड में पे करेंगे।
क्योंकि हम मार्च के मंथ का बना रहे हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है 31 की, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की जो अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट में आपने अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया था, ठीक है, जरा देखिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल 12,000 क्रेडिटेड। अब ये अकाउंट पेबल में से आप लोग 4,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसकी जो पेमेंट वाली बनाई है वो कहा है अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, जो कि हम पेड टू सप्लायर या पेड लाइबिलिटी की जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्लियर है? Okay. Another question in which I would like to discuss with you, we have this exam question number 26. This is also your past paper question, जो आपके 5 years के क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादातर आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। करंट स्ट्रैटेजी मेरी आप लोगों के साथ यही रहेगी, that you have to solve the questions right now in your class with me, rather than आप लोग पूरी क्लास अटेंड करते हो बेटे और उसके बाद आप अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, then you people will be burdenized that after a class you have to sit again for 2 to 3 hours to do your work. So it's better to do the questions right now. What we have to do, we have to write it down, the transaction of the following. We have number one, following is the general journal of December traders. Now we have the date 1st January 2011, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आप लोगों ने सिर्फ इस जर्नल एंट्री को देखना है और इसकी ट्रांजेक्शन्स अपने पास लिखनी है। नाउ प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑडियंस दैट यू हैव टू राइट इट डाउन द ट्रांजेक्शन. We have discussed in the last lecture that whenever you can see the transaction, general journal, you have to do the you can say recording of transaction also. Okay, so yes, then we have January 4, ठीक है, this is again your general journal, prepaid shop rent and then cash credit. prepaid का वर्ड आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आया है। prepaid का मतलब है सॉरी पेड इन एडवांस, लाइक यू हैव टू पेड समथिंग इन एडवांस। तो आप इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पेड शॉप रेंट ही बनाएंगे, बट अगेन सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, इन एडवांस, पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹80,000, इस तरह करके आपकी ट्रांजेक्शन बनेगी, ठीक है। शॉप रेंट की नेचर एक्सपेंस है, ये तो आप लोगों को पता ही है, सही है, लेकिन जब हमने इसके आगे प्रीपेड का वर्ड लगा दिया, इसका मतलब ये पेड इन एडवांस है, समथिंग यू हैव पेड इन एडवांस। हम यूजली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसकी हम एडवांस पेमेंट करते हैं और फिर आपको सर्विसेज मिलती हैं। सो वेन एवर यू पेड इन एडवांस योर एक्सपेंस शुड बी इट टर्न टूवर्ड्स योर एसेट। प्रीपेड यहाँ पे करंट एसेट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। जो शॉप रेंट है वो हमारे पास एसेट की तरह ट्रीट हो गया क्योंकि इसके साथ प्रीपेड का वर्ड लगा। देन वी हैव जनवरी 5, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट क्या मतलब होगा कि बैंक में पैसे गए हैं और आपके हाथ से पैसे चले गए। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें बैंक डेबिट हो जाए, बैंक में आपने पैसे जमा कराएंगे और आपके हाथ से पैसे चले जाएंगे। इसका मतलब होता है ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹10,000। जब आप किसी बैंक में जाएंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यूजली हमारे पास क्या होता है, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, बैंक इज योर एसेट, तो बैंक एसेट इंक्रीज होता है, इट विल बी अ डेबिटेड, ठीक है। देन ऑन द कॉन्ट्ररी अनदर टाइम वी हैव कैश क्रेडिट। कैश की नेचर क्या है, एसेट है और कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ऑन जनवरी 6 बैंक डेबिट कैश क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होगी, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹10,000। Then on January 6 we have purchases 25,000। हमने 25,000 की परचेजेस करी हैं। गुड्स का नेम मेंशन नहीं है, इसका मतलब है परचेज मर्चेंडाइज का वर्ड स्टार्टिंग में होगा। देन कैश 5,000 एंड अकाउंट्स पेबल 20,000। सम टाइम हम कोई भी सामान या कमोडिटीज परचेज करते हैं तो इट हैपन्स टू विद अस कि हम उनको कहते हैं कि ऐसा करें, अभी आप 5,000 रुपीज़ कैश रख लें और हम बाकी के पैसे आपको बाद में पे कर देंगे। यानी हम कुछ उधार भी कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, बहुत सारा उधार हुआ हुआ है। हमने उनको 5,000 रुपीज़ पे किए और जो हमने उनको ऑन क्रेडिट किया है वो अकाउंट पेबल 20,000 है। परचेजेस, नेम ऑफ द एसेट मेंशन नहीं है, मैंने कहा परचेज मर्चेंडाइज बाय कैश ₹5,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000, ठीक है। एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर आपने दोनों बातें लिखनी है, परचेज मर्चेंडाइज बाय कैश ₹5,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000।
ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन में आपने कैश और अकाउंट पेबल दोनों की बात करी है। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, जनवरी 10 2011 we have cash 10,000, bank 10,000 and sales 20,000। सेल्स का मतलब है आपने सोल्ड मर्चेंडाइज करी है, ठीक है, आपने सामान बेचा है, कितने का, 20,000 का आपने सामान सोल्ड आउट किया है। जब आपने सामान सोल्ड आउट किया तो आपके पास कैश में अमाउंट आई है 10,000 और फिर आपको एक चेक मिला है 10,000 का, ठीक है, क्योंकि बैंक भी डेबिट हुआ है ना, आपके बैंक में भी पैसे आए हैं। तो हमारे बैंक में पैसे कब आएंगे, जैसे ही हमें कोई चेक अगर सबमिट करवाता है ना, तो हमारे बैंक में, क्योंकि चेक है, डायरेक्टली चेक को मैं कैश करवाने के लिए बैंक में ही जाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे वर्ड ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, सोल्ड मर्चेंडाइज बाय कैश ₹10,000 एंड बाय बैंक 10,000, ठीक है। सिंगल ट्रांजेक्शन में कैश का वर्ड भी यूज होगा और बैंक का भी। आई रिपीट वंस अगेन, sold merchandise by cash ₹10,000 and by check ₹10,000, ठीक है। मैं आप लोग के साथ साथ स्लो स्लो कर रही हूँ, अगेन मैं आप लोग को टाइम प्रोवाइड करूंगी एंड यू हैव टू शो मी योर वर्क दैट यू आर रियली डूइंग विद मी। देन वी हैव जनवरी 12 2011 drawing debit and bank credit। Here you have to do it by the terms of withdrew for personal use, but we have bank credited over here। Now what we have to do, journal entry record करिए, drawings debit, bank credit, withdrew cash for personal use from bank, because हमारे पास यहाँ पर उन्होंने specify किया हुआ है कि आपने बैंक में से पैसे withdrew करे हैं, ठीक है। This is your 2011 regular question, जो आपके पास मोस्ट टेक्निकल पार्ट्स थे ऑफ द टू डेज लेक्चर जो हमने अभी समाप्त किए हैं। वो कौन कौन से बेटे, सबसे पहले आपको जो आपने आज ट्रांजेक्शन्स थोड़ी सी न्यू रीड गो थ्रू करी है, वो आपके पास है प्रीपेड शॉप रेंट, डेबिट एंड कैश क्रेडिट, देन वी हैव परचेजेस डेबिट, कैश एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहाँ पे भी यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन थी, सेम ट्रांजेक्शन में आपके पास कैश और अकाउंट्स पेबल दोनों ट्रीट हो रहे थे। परचेज मर्चेंडाइज बाय कैश एंड ऑन अकाउंट दोनों ट्रीट हुए हैं। देन सोल्ड गुड्स या सोल्ड मर्चेंडाइज बाय कैश एंड बाय चेक दोनों ट्रीट हुए हैं। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, यहाँ भी आपके पास यूजुअली कैश होता है, आपने बैंक को ट्रीट किया है। अच्छा, ये वाली ट्रांजेक्शन भी आपके पास अच्छी है, प्रीपेड शॉप रेंट। हमारे पास आप लोग यूजुअली क्या देखते हैं, शॉप रेंट एक्सपेंस होता है, आपके पास जर्नल एंट्री होती है पेड शॉप रेंट। यहाँ पे पेड शॉप रेंट नहीं, एडवांस पेमेंट हो गई है, ठीक है। शॉप रेंट को जब हमने एडवांस में पे कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास एसेट बन जाएगा। प्री पेड का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, पेड इन एडवांस, पहले से अदा कर देना। सो हेयर प्री मीन्स पहले, पहले से पेमेंट होना इज इट्स प्री पेमेंट, ठीक है। एंड देन यू हैव ट्रीटेड एज एन एसेट प्रीपेड शॉप रेंट, वही एक्सपेंस होगा लेकिन उसके साथ आपने प्रीपेड का वर्ड लगा दिया। पेड शॉप रेंट इन एडवांस, आपके पास ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बेटे। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू पीपल। आपने लास्ट क्लासेस में मेरे साथ डिस्कस किया था हाउ टू रिकॉर्ड। हम लोग ट्रांजेक्शन से जनरल जनरल और डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हम अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या हमने चीज लर्न करी है कि हमें अगर डबल एंट्री फॉर्म होती है, हमें इस तरह जनरल जनरल मिलता है, तो हम उसकी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो योर पास्ट पेपर क्वेश्चन 2011 रेगुलर। Another question, exam question number 14, sorry, exam question number 24. I will let you know, this is on your book page number, wait for a while, book page number 69. This is on your book page number 69, exam question number 24. The following are transactions relating to the business of Mr. Babar for the month of January 2009, ठीक है। प्लीज काइंडली अभी से फॉरन से 5 कॉलम बनाएं, फास्ट फास्ट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट लिखिए। आपके पास इस पर कितनी 6 ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्री पहले रिकॉर्ड कर लीजिए। बाबर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट 200,000। और उसके पास नरेशन में लिखिएगा टू रिकॉर्ड मिस्टर बाबर्स इन्वेस्टमेंट ₹200,000। देन
वी हैव जनवरी 10 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। हमारे पास परचेज के साथ मर्चेंडाइज का वर्ड है, कोई भी एसेट का नाम नहीं है। हमने बोलना है परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 20,000। फिर आप नरेशन लिखेंगे, नरेशन बाद में लिख लीजिएगा, पहले इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। स्पेस छोड़ दीजिएगा नरेशन के लिए, एंड देन नरेशन लाइन, बट रिकॉर्डिंग पहले कर लीजिए। परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 20,000। रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू द सप्लायर, इसका मतलब अभी आपने जो चीज 10th को परचेज करी है, 12 में आप उसको थोड़ी सी डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनती है बेटे? अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। आई रिपीट, अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिटेड, ठीक है। अमाउंट 2000 है, 20,000 की आपने कमोडिटीज खरीदी थी, उसमें से 2000 की आपने रिटर्न कर दी। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिटेड, ठीक है। सेल्स नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है, वरना हम अकाउंट रिसीवेबल के साथ ब्रैकेट में जो है नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करते हैं, और इसी तरह अकाउंट्स पेबल में भी नेम ऑफ द पर्सन ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। नंबर 20, ग्रांटेड एन अलाउंस ₹1,000। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रांटेड एन अलाउंस का मतलब है पैसे वापस करना, ठीक है। टू द कस्टमर, आपने कस्टमर को पैसे वापस किए हैं ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज। इसका मतलब कस्टमर ने आपको डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न करी थी और आपने उसको पैसे ग्रांट कर दिए, दे दिए हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो गई है, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल credited, ठीक है। Sales return debited and account receivable credited. Then we have January 25, paid rent for January 5,000, ठीक है। हमने रेंट पे किया है फॉर जनवरी, 5,000 रेंट पेमेंट है। सिंपल आपके पास जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड देन कैश क्रेडिट, एंड दिस विल बी अ 5,000। ये आप लोगों की सारी जर्नल एंट्रीज हैं, काइंडली अपनी जर्नल एंट्रीज को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। और ये आपके पास इसका आंसर है, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अपने आंसर्स भी काइंडली मैच कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, thank you so much for today's class, hope so you like the lectures, clear?